specific gravity by cyanometer. So how are we going to do it? So for that we are going to need a cyanometer, balance, drawing oven, desiccator glass rod, distilled water, and thermometer. So first of all, we would dry the cyanometer thoroughly and weight its cap tightly screwed on W1. The W1 will be the weight of cyanometer with its cap. So you know this is cyanometer. Yeah, it's just a jar. So then we will unscrew the cap and put in around 200 grams of over-dried soil, which passes through 4.75 IS sieve, and then we will weight the whole thing again, and we will tell it as W2. And after that, we will add sufficient water to cover the soil about half. So we will cover the soil about like half of the cyanometer. Then we will fully screw the cap and then shake well. The full solution will shake so that the soil becomes wet. So we put first we put some overdried soil, then we put some water upon it, and then we screwed the cap, and then we're shaking it well so that the soil becomes wet and air shall be removed. So to remove the air and make the soil wet, this process is done. Now allow air to remove about 20 minutes. So we will allow the air to be gone for like 20 minutes. Then we'll add more water on the in the cyanometer to the cap, and we'll use glass rod to remove the entrapped air. So for that we'll use a glass rod which we took to remove the entrapped air. After removing all the entrapped air, again check the level in cyanometer, and water is required to top of cap and wipe up with dry cloth. So after removing the entrapped air, we'll check the level of water in cyanometer, and we'll see that water is on the top of cap or not. And water is we'll wipe off the excessive water outside, and we'll take the weight as W3. Now we'll clean the cyanometer and wash it thoroughly with water. Then we'll fill the cyanometer with water up to its top, screw the cap, and add water up to the top of the cap. So like this, we first we took weight of this empty container, like empty cyanometer. Then we took cyanometer and soil. Then we put some water in it. This is overdried soil. Then we put some water in it, and then we remove the water and all. Then we remove the air from it, and then we wash thoroughly, and we washed the cyanometer thoroughly with water, and now we filled it with water, which is known as W4, and we'll do this test twice. So the specific gravity, how would it be calculated? So this minus this, that is weight of soil, upon this minus this, the weight of soil, minus W3 minus W4, which is weight of soil without air. We could see that. So this is the apparatus. So what is specific gravity? It is given by this formula, and basically specific gravity is soil upon water. So here we get the same thing, which is soil upon water. First is the consistency. So what is consistency? Consistency is the property of material which shows resistance to flow. So as material moves, as soil moves, and we are talking about soil right here. So means how much it resists to the movement of flowing. यानी वो बहने को कितना oppose कर रहा है. That is called consistency of a soil. That how much is the opposition of its moving soil of moving. So in technical terms, we would call it degree of resistance offered by fine grained soil to deformation. Right? Sorry, this arrow came. Okay. So it is degree of resistance offered by fine grained soil to deformation. So to certain extent, it denotes firmness of a soil, and then it is also means it could be used for determining the firmness of a soil. Then it is also described as soil consistency, like how would we tell that if we perform consistency of soil? So how would we tell what is the consistency of soil if any question is asked? So we would tell them as no, sir, the soil is consistently soft, or it is medium stiff, or very stiff. These are types, like soil is described in these types. A clay might
a clay may be almost like a liquid or it may be hard soil depending upon its water content. So it would be like a liquid, a clay. अगर उसमें पानी ज्यादा रहा तो वो एक क्ले रहेगा यानी चिकट रहेगा, और अगर उसमें पानी नहीं है यानी if there is no water, so it would be hard, as you know, like where soil doesn't get water it becomes hard, right? So moving further, there are stages of consistency. So what are the stages of consistency? So there was a Swedish agricultural engineer whose name was Atterberg. Atterberg, who was Atterberg? He was a Swedish agricultural engineer. Swedish agricultural engineer था वो. तो he introduced that a fine grain soil can exist in four states. तो उसने क्या बोला था कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी, जो उसके चार स्टेट्स में ले सकते हैं: लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड. ये तो हमने सेकंड में भी पढ़ा था. तो अभी इसमें सॉइल में कैसा काम आता है तो वो देखते हैं. सो द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आर टर्म्ड एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स. एकदम इजी है. कंसिस्टेंसी पता है सबको क्या है. कंसिस्टेंसी डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कितना अपोज कर रही है. तो कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है? हमें कितना पानी लगेगा एक लिक्विड एक लिक्विड जैसी सॉइल को, यानी बहुत ज्यादा चिकट सॉइल है उसको थोड़ा सा प्लास्टिक करने में, या फिर एक सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर हमारे पास एक प्लास्टिक सॉइल है उसको हमें थोड़ा लिक्विड करना है तो हमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा. तो वैसे कितना पानी लगेगा हमको, लाइक वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए एक सॉइल को ये स्टेट्स में रहने के लिए. द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर आर टर्म्ड एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स. ऑलराइट. सो a soil containing high water content is in liquid state. जिसमें सबसे ज्यादा पानी होगा वो तो लिक्विड स्टेट में होगा ऑब्वियसली. उसमें शीयरिंग रेजिस्टेंस भी नहीं होगा और वो पानी जैसा ही बहेगा, राइट. एंड उसमें शीयर स्ट्रेंथ जीरो ही होगा क्योंकि वो कुछ ले ही नहीं पाएगा ना फ्रेंड, वो कुछ लोड ही नहीं ले पाएगा खुद से. सो अगर हम जैसे जैसे पानी कम करते हैं वैसे वैसे सॉइल में भी एक रेजिस्टेंस आना चालू हो जाता है शीयर डिफॉर्मेशन के लिए. सो दैट इज द थिंग. एंड नाउ अटरबर्ग के कुछ लिमिट्स है कंसिस्टेंसी के, वो हम पढ़ेंगे. सो अटरबर्ग के जो लिमिट जो भी थे वो सिर्फ फाइनली ग्रेन सॉइल के लिए थे, इतना याद रखना. इट वाज ओनली फॉर फाइनली ग्रेन सॉइल. सो the water content at which soil passes from one state to the next are known as consistent limit. As per Atterberg, these limits are liquid limit, plastic limit, shrinkage limit. All right. So these were the limits. ये जैसे कि मैंने कहा consistency. So liquid limit क्या है हमारी? Liquid limit is defined as the minimum water content at percent on dry basis at which the soil changes its state from liquid to plastic state. तो liquid limit क्या है? It is minimum water content at percent on dry basis. तो ड्राई अगर हमारी सॉइल है तो उस पर हमें कितना वाटर लगेगा कि सॉइल अपनी जो स्टेट है वो लिक्विड से प्लास्टिक में कन्वर्ट करे, तो वो हमारी लिक्विड लिमिट होगी. लिक्विड लिमिट मतलब कैसे होगी? अगर अभी पानी सूख रहा है तो अभी एक लिमिट होगी जहां तक ही पानी लिक्विड रहेगा. उससे ज्यादा अगर आगे गए तो प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, राइट. सो प्लास्टिक स्टेट क्या है? वो भी एक मिनिमम वाटर कंटेंट है जो ड्राई सॉइल पे होता है. Which soil enters from semi-solid state to plastic state. Semi-solid मतलब क्या? सबसे सॉलिड यानी सबसे रफ से थोड़ा सा कम नीचे सेमी-सॉलिड स्टेट. तो जहाँ से सेमी-सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आता है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, राइट. सो श्रिंकेज लिमिट ये क्या होता है कि इसमें हम इससे शेप चेंज हो सकता है सॉइल का, यानी थोड़ा हम शेप चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल विल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 mm डायमीटर. सो सॉइल को अगर हम लेते हैं टेबल पे और उसको थोड़ा सा रोल करते हैं टेबल पे, ऐसा हाथ से अगर हम उसको रोल करते हैं, देन उसको एक 3 mm के डायमीटर के थ्रेड में विदाउट एनी लाइक यू नो कोई उसमें डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए, तो उसको कहते हैं हम प्लास्टिक लिमिट, लाइक इसमें करते आना चाहिए. देन
तभी वो हमारा प्लास्टिक लिमिट होगा। सो श्रिंकेज लिमिट क्या है? तो ये इज shrinkage limit is the water content corresponding to arbitrary limits between solid and semi-solid states of consistency of soil. It is defined as the maximum water content at which reduction in water will not cause decrease in soil mass. तो ये एक मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसमें अगर हमें पानी कम भी करते हैं तो उसके उससे हमारा जो वॉल्यूम है सॉइल का वो अफेक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम वर्क वही का वही रहेगा श्रिंकेज लिमिट में। It is the lowest water content at which soil can be still be in completely in saturated condition। तो ये कम से कम पानी का ये है जिसमें सॉइल पानी होल्ड करेगा। Like shrinkage limit is the last limit where water is in like the soil is in saturated condition, यानी जिसमें पानी है। Saturated मतलब क्या? जिसमें पानी है सॉइल में। तो वो हुआ हमारा श्रिंकेज लिमिट। और ये इससे पहले मैं ये बोलूंगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या? व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स? इट इज सिंपली लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इट्स इट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। It's as simple as that. Just remember plasticity index. What is plasticity index? It is liquid limit minus plastic limit. All right. So moving further. Okay. Okay. So here we have some important thing. So determination of consistency limit. So now we know liquid limit and that all things. But if we are given soil on the like if we are given soil on the ground and like field and we are told to take this soil and give me the liquid limit of this soil. So what would you do? And you are given 1 hour for it. So there's this method to find, which is Casagrande's method for determination of liquid limit. So it is a liquid limit is the percentage moisture and added soil has a shear strength that is flow to close the groove of standard width of 1.25 centimeter and the impact of 25 below in a standard liquid limit. Do you understood anything? No. Okay. So let's like understand this. So what we have to do? We have to take a soil sample, and whatever soil sample we are given, we have to take that and sieve it to the sample of 425 micron IS sieve। तो जो हमारा sieve होती है तो उससे हमको sieve करना है वो सैंपल को, जिसकी जो ये लेंथ होगी इन दोनों के बीच की ये होनी चाहिए 425 माइक्रोन। ऑलराइट, यानी 0.425 mm होनी चाहिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो उन्होंने बाद में बोला कि टेक 120 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल एंड मिक्स इट प्रॉपरली विथ 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो उसको पानी लेना है, उसको 20 ml जितना भी लिया है हमने उसको उतना पानी में मिक्स करना है और उसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट को टेस्ट कप में डालना है और उसमें उसको एक स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल। सो व्हाट डू मीन स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल क्या होता है? आई विल टेल यू दिस। सो या ये हमारा कैसे ग्राइंडी का ये हमने जो पेस्ट बनाई है इसमें जो इस पेस्ट को हमने पहले सीव किया, देन उसमें हमने पानी डाला, उसकी पेस्ट बनाई, उसको वेट किया एंड इसको इसमें डाला, दिस थिंग। या सो दिस थिंग। सो क्या किया हमने उसके बाद? स्टैंडर्ड ग्रूविंग टूल का क्या, एक हमने ऐसे एक बीच में सेपरेट किया दोनों को, तो उसमें हम उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ग्रूविंग टूल यूज किया जाता है ऐसा। ये देखो, दिस इज द ग्रूविंग टूल। या दिस एंड दिस, या if you could see, this is the grooving tool by which we just put out a line right here। so हमने ग्रूविंग टूल से एक लाइन मार ली। सो नाउ lift and drop the cup to fall on the rubber base with the help of a cam operated by handle, and the handle is rotated at a rate of 12 revolutions per second until the two half of soil sample in the cup come in contact with each other। so now ये जो हमारा apparatus है इसमें एक हैंडल है, इससे हम उसको हिलाएंगे, लाइक आजू बाजू में हिलाएंगे तो
उसको जब तक टच नहीं होता एक दूसरे से तब तक उसको हिलाना है। ये देखो, यहाँ पे टच हो गया, तब तक उसको हिलाना है। 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड मारने हैं उसके। एंड देन उसमें हमें रिकॉर्ड करना है नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू क्लोज द ग्रुप। यानी इसमें ये जो ग्रुप बना है हमने, इसको, ये गैप को ग्रुप कहते हैं। तो इसको क्लोज करने में हमें कितना टाइम लगता है। तो सो दैट इज, यानी कितने ब्लोज लगते हैं, रिवॉल्यूशन यानी कितनी बार करना पड़ता है, वो ये करना है। देन मिक्स द सॉइल इन अ कप इमीडिएटली एंड रिपीट द अबाउट स्टेप्स। तो सॉइल को एक कप में डालना है और वापस ये सब करना है, वापस चालू। अ नंबर ऑफ ब्लोज शुड बी सीन। ब्लोज भी सेम ही रखने जितने हमने लास्ट इसमें किए थे। अगर डिफरेंस रहा 2 या 3 ब्लोज का आगे या पीछे, तो वो पुअर मिक्स है सॉइल का। उसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। मॉइस्चर कंटेंट के बाद जो टेस्ट है वो 4 से 5 सॉइल सैंपल्स में करना है विद वेरिंग मॉइस्चर कंटेंट्स, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट्स के। और उसमें ये ग्राफ होता है उसका, इसको यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट। सो नाउ दिस वाज हाउ टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट। Moving forward, the next, plastic limit of soil. What we have to do? So plastic limit इज द बाउंड्री। ये एक बाउंड्री है, वो किसके बीच की बाउंड्री है? प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल, यानी श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल। So it is defined at a minimum moisture content at which soil can be rolled into 3 mm threads without showing any signs of cracks. तो बहुत इजी है। प्लास्टिक लिमिट का क्या होता है? ये एक मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है, यानी टेक्निकल डेफिनेशन इसकी, दैट इज मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें सॉइल की जो पेस्ट बनाते हैं हम उसको 3 mm की डायमीटर के थ्रेड में, थ्रेड यानी क्या, लाइक दिस इज थ्रेड, ही इज मेकिंग थ्रेड ऑफ दैट। सो उसको इसमें बनाना विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ क्रैक्स। तो विदाउट एनी क्रैक्स उसको ऐसे रोल करना। सो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। तो उसकी प्रोसीजर क्या है? तो पहले वो सीव करना है सॉइल को 425, दोनों में भी सेम है, यानी जो हमारा सीव होगी उसमें गैप, जैसे कि मैंने आपको बोला 425 माइक्रोन का गैप रखना है। वही लिक्विड लिमिट के लिए, वही प्लास्टिक लिमिट के लिए। और आगे 20 ग्राम सॉइल, और उसमें उसमें पानी मिलाना है जब जब तक कि वो प्लास्टिक नहीं हो जाती, ताकि उसको मतलब हाथों से हम मोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला था पहले इसमें कि प्लास्टिक उसमें उसको यानी कोई भी शेप में हम लगा सकते हैं प्लास्टिक लिमिट के में जो भी सॉइल है। देन उसका एक बॉल बनाना है जिसका मतलब डायमीटर वही, लाइक चेंज नहीं होगा, उसका डायमीटर यूनिफॉर्म ही रहेगा। उसको एक ग्लास प्लेट लेनी है ऐसी, और उस पर उसको रोल करना है। और इसमें फिंगर प्रेशर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो जब तक 3 mm का डायमीटर थ्रेड नहीं बनता तब तक उसको ऐसे रोल करना है। तो उसमें ये तब तक करना है जब तक हमें कोई क्रैक्स नहीं दिखते उसमें। जब तक हमें क्रैक्स नहीं दिखेंगे तब तक हमें वही उसको रोल करते रहना है। और उसके बाद उसका आप एक पोर्शन लेना है और उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ सॉइल थ्रेड, यानी W1 क्या है, जो गीला सॉइल होगा हमारा उसका वेट, और W2 उसका ड्राई ड्राई सॉइल का वेट, ड्राई सॉइल थ्रेड का वेट। और उसमें टेक 3 ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड द एवरेज वैल्यूज ऑफ द प्लास्टिक लिमिट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल। तो उसमें इसके भी 3 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, और उसमें जो हमने देखा अभी प्लास्टिक लिमिट का। देन अभी नीचे वाले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं प्लास्टिक, इसका यूज क्या है, प्लास्टिक लिमिट का क्या पे यूज होता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड होता है इससे, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, इतने सब इंडेक्स फाइंड करते आते हैं, जिसका यूज आपको आगे जाके पता चलेगा कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये सॉइल को क्लासिफाई करने में और उसकी बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने में, ये जितने भी इंडेक्स है ये सब मतलब आगे ये सब उसमें यूज होता है कि सॉइल कौन से टाइप की है, कितना बेरिंग कैपेसिटी आएगा वो हिसाब से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। एंड नाउ अगेन मूविंग फॉरवर्ड, so particle size distribution. What is particle size distribution? So particle size analysis is also known as mechanical analysis, and it expresses quantitatively
द proportions by weight of various sizes of particles present in a soil। तो ये हमें बताता है कि सॉइल में कैसे कैसे साइज के यानी कैसे कैसे साइज के पार्टिकल्स है। तो फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो ये जो मैकेनिकल एनालिसिस है ये यानी साइज ग्रेडेशन एनालिसिस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दो फेज में किया जाता है। पहला है सीव एनालिसिस एंड सेकंड इज सेडिमेंशन एनालिसिस। सो सीव एनालिसिस ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, इट इज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल एंड दैट मीन्स पार्टिकल साइज विच इज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। और जो सेडिमेंटेशन है दैट इज फॉर फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन सॉइल यानी क्या, जिसकी पार्टिकल साइज जो भी होगी वो 75 माइक्रोन से कम होगी। सॉरी फॉर दिस। So sedimentation analysis also known as mechanical wet mechanical analysis। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होती है उसको हम वेट मैकेनिकल एनालिसिस बोलते हैं। पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोन कैन बी डिटरमाइंड। तो अगर कोई पार्टिकल्स है हमारे सॉइल में जिनका साइज है 0.2 माइक्रोन, तो वो हम सेडिमेंटेशन से नहीं निकाल सकते। हाँ, हम निकाल सकते हैं कौन से 75 माइक्रोन से नीचे। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही छोटा है, अरे भाई ज्यादा ही हो गया अभी से 0.2 माइक्रोन, तो वो हम नहीं निकाल सकते। तो वो निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। नाउ स्टेट पार्टिकल, ये तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन है सॉइल्स की। क्ले होता है लेस देन 2 माइक्रोन, सिल्ट होता है 2 to 75 माइक्रोन। ये दोनों आते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, और ये चारों आते हैं या सीव एनालिसिस में, राइट। ये वेट से ये जो एनालिसिस है हमारा इन दोनों के लिए वो होता है वेट मैकेनिकल एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को बोला जाता है। सो नाउ